of the wheel, how the wheel was invented by the early humans, and then it made a revolution. उनके जो है एक revolution आया in the field of transportation. We cannot imagine the world without wheels. So the early humans, they were the first who invented the wheel. They made a hole in the middle of the logs of wood को काट के into slices. They made a hole in the middle, and this was the first wheel. तो पहले जो है they were using the wheel in their carts में use करते थे अपनी wheel को. But slowly now they started using this wheel for other purposes also. वो दूसरे कामों के लिए भी अब wheel का use करना शुरू कर दिया था उन्होंने. So दूसरे क्या काम करते थे? Even to take out water from the wells, जो कुएं वगैरह थे उनमें से पानी निकालने के लिए भी they were using the wheels. So that is called the water wheel बोलते हैं उसको. So here you can see this is the water wheel. So ये water निकालने के लिए भी use करते थे wheel को. Then slowly water wheel के बाद now they started using the wheel for other purposes also. So what they used to make now pots, that is called the potter's wheel. वो उस पे रख के now they started making क्ले के पॉट्स बनाने शुरू कर दिए थे उन्होंने व्हील के ऊपर रख के. सो इवन टुडे दे आर यूज्ड बाय द पॉटर्स. आज भी दिस पॉटर्स दे मेक पॉट्स यूजिंग दिस व्हील. So now the potter's wheel was invented by the early man. They started using this potter's wheel to make clay pots. And even today it is used by the modern man. आज भी use करते हैं the modern man to make pottery. Potters जो है कुम्हार जिनको बोलते हैं, they use this potter's wheel even today to make pottery. और ये दिए वगैरह जो बनते हैं दिवाली में, this all are made by this potters. बहुत सारे different items they make, very beautiful items with this pottery. So this invention of wheel, it was a turning point in the life of the early man and in the field of transportation में और in the life of the early man, ये जो है बहुत ही बड़ा चेंज आया उनकी लाइफ में व्हील के इन्वेंशन से. Earlier their life was difficult, so now their life became easier when they learned to move from one place to another place easily, and they learned even to carry their goods from one place to another. People be they could move now easily from one place. पहले उनको पैदल चल के जाना पड़ता था और जो सामान होता था they used to carry on their head, on their back, और बहुत ही मुश्किल होती थी उनको जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था. But now this traveling became easier after the invention of the wheel. So that was a turning point in the life. मतलब उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी अब when the wheel was invented, और उन्होंने उसके different uses सीख लिए थे कि wheel को हम कैसे कैसे use कर सकते हैं. खाली transportation के लिए नहीं, different uses. They learned how to take out water from the wells using these wheels, and they also learned how to make pots, clay pots using these wheels. And जो पहली पहली wheels थी वो ऐसे vehicles बने थे उनमें से. ओके, डिफरेंट बहुत बड़े बड़े wheels यूज होते थे. आजकल तो छोटे हो गए, और पहले वाले wheels जो थे उनपे टायर्स वगैरह भी नहीं लगे होते थे. देयर वर नो टायर्स. बट slowly the man developed, and today we have the different types of vehicles. बहुत ही अच्छे wheels बन गए हैं आजकल, है ना. सो अर्लियर वाले wheels जो ऐसे होते थे, दिस इज अ हॉर्स कार्ट, इसको घोड़ा गाड़ी, एंड ओल्ड जो पुराने जमाने में इस टाइप की व्हीकल्स होते थे, कार वगैरह इस टाइप के होते थे. बट नाउ द मैन दे इन्वेंटेड मॉडर्न व्हील्स, और चेंजेस आता गया. And because with time the technology developed, and today we have different types. बहुत ही सुंदर आजकल के गाड़ियां, बहुत डिफरेंट, बहुत सारे ब्रांड्स हैं आजकल तो, है ना. So this is how the wheel made a revolution in the field of transportation, in the life of the early man. Now this early man, they started उनको जो है एक जगह रहने लगे थे. दे स्टार्टेड सेटलिंग नियर द रिवर बैंक्स. वो यूजुअली जो है नदी के किनारे रहते थे. क्यों? बिकॉज उनको प्यास लगती थी, पानी पीने के लिए. तो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स भी थे,
दे वांटेड इवन डोमेस्टिक एनिमल्स को भी पानी चाहिए था. सो दे यूज्ड टू लिव नियर रिवर बैंक, जहाँ पे पानी होता था और जहाँ पे उनको कुछ खाने को मिल जाए वो वहीं पे सेटल हो जाते, रहने लग जाते थे. और जब खाने का उनका कुछ खत्म हो जाता था वहाँ पे, दे यूज टू गो टू अनदर प्लेस, फिर वो दूसरी जगह कहीं अपना डेरा जमाते थे, कहीं दूसरी जगह चले जाते थे. सो दे यूज टू लीव, सबसे पहले दे यूज टू सर्च नियर रिवर बैंक, ताकि उनको पानी मिले फॉर themselves एंड फॉर देयर एनिमल्स ऑल्सो दे वांटेड वाटर. तो उन्होंने जो है पीने के लिए भी पानी चाहिए था, दे वांटेड इवन वाटर टू ड्रिंक, और दूसरे कामों के लिए भी दे वांटेड वाटर. और क्या फायदे थे दे वांटेड वाटर के पास क्यों रहते थे? बिकॉज दे कुड कैच फिश एंड दे यूज्ड टू ईट फिश एज फूड. तो पहले वो लोग फिश खाते थे. सो दैट वाज आल्सो अनदर यूज, दैट वाज आल्सो अनदर रीजन व्हाई दे स्टार्टेड लिविंग नियर द रिवर बैंक्स. रिवर बैंक क्या होता है बेटा? नदी का किनारा. बैंक मतलब वो वाला बैंक नहीं है जिसमें पापा मम्मी पैसे रखते हैं. ओके, ये वाला रिवर बैंक क्या होता है? नदी का किनारा को रिवर बैंक बोलते हैं इंग्लिश में. So now they could easily catch the fish and they could eat the fish. So इस तरह से now the life of the early man थोड़ी सी settle होने लग गए थे. अब वो एक जगह रहने लग गए थे. So सब वो धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को देखते थे और नोटिस करते थे क्या क्या है, और एनवायरनमेंट को समझने लग गए थे वो लोग कि क्या-क्या चेंजेस होते हैं, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है. तो इस तरह से दे नोटिस्ड द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और उसके बारे में सोचने लग गए थे. दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, उनको समझ में आने लग गया था थोड़ा-थोड़ा. तो नाउ देयर व्हेन दे वर ईटिंग फूड, मैंने आपको पहले बताया था कि दे क्या करते थे, वो कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते थे एंड दे यूज्ड टू थ्रो द सीड्स ऑफ दैट फ्रूट्स इन द सॉइल. ऐसे ही फेंक देते थे कहीं पर भी. और जब उनको पानी वगैरह मिलता था उन सीड को, तो वो जो है उसमें से नया प्लांट स्टार्टेड growing in the soil. So now this early man, they came to know कि सीड्स से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. अगर उसको मिट्टी में डाल दिया जाता है सीड को, तो इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. सो इससे उनको आइडिया मिला दैट वी कैन ग्रो प्लांट्स फॉर फूड. नाउ दे स्टार्टेड ग्रोइंग plants for food. इससे उनको आइडिया मिला that they can grow plants and now they started collecting the seeds. फिर वो seeds को collect करके रखने लग गए थे and they started sowing them. Sowing मतलब बोना, बीज को बोना उसको sowing बोलते हैं. So now they started collecting the seeds and they started sowing them. उनको फिर बोने लग गए थे and now they started to grow plants. This is how they learned फार्मिंग. अब उन्होंने फार्मिंग सीख लिया था, एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, उन्होंने सीख लिया था. एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस. अब उनको एक ही जगह पे रहना पड़ेगा अपने क्रॉप्स की केयर करने के लिए, टू वाटर द प्लांट्स. फिर वाइल्ड एनिमल्स कोई उनके फील्ड्स में ना घुस जाए, खेतों में ना घुस जाए. दे वांटेड टू टेक केयर ऑफ देयर प्लांट्स. सो नाउ दे स्टार्टेड लिविंग इन द सेम प्लेस. अब वो इधर उधर नहीं जाते थे बार बार, क्योंकि अब उन्होंने खेती करना सीख गया था. अगर फूड उनको नहीं मिलता है तो वो लोग ग्रो करते थे. नाउ दे स्टार्टेड ग्रोइंग. तो अब वो फार्मर्स बन गए थे. पहले वो हंटर्स थे, है ना, वो एनिमल्स को मार के खाते थे, पकड़ के खाते थे. फिर बाद में वो गैदरर्स भी बने थे. वो लोग सीड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करके लेकर आते थे और उनको खाते थे. तो हंटर गैदरर्स भी बोलते हैं अर्ली ह्यूमंस को. तो हंटर गैदरर्स से नाउ दिस अर्ली ह्यूमंस दे बिकेम फार्मर्स एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग. अब उन्होंने जो है फार्मिंग सीख लिया था. उनके पास एनिमल्स तो थे ही. दे यूज टू कीप सम डोमेस्टिक एनिमल्स एंड डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल विच दे केप्ट एज अ डोमेस्टिक एनिमल. शीप वगैरह रखते थे. सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग. और अब फार्मिंग करने के लिए उनको कुछ टूल्स, औजारों की भी जरूरत पड़ती थी ना फॉर फार्मिंग. सो दे स्टार्टेड इन्वेंटिंग सम टूल्स ऑल्सो. So now the early humans, they started farming and they wanted some tools for farming. उनको कुछ tools की जरूरत पड़ती थी for
farming. So now they started making some tools for farming. अब वो कुछ tools बनाने लग गए थे for farming. And these early humans, that was the first tool that they made was the plow. Plow means हल जो होता है. That was the first tool that was made by the early humans. So the first tool that the early man developed for farming, that was the plow, the वो हल जो बोलते हैं, that was the first tool that was developed by the early man for farming. And now they started using this plow for farming. तो ये क्या काम आता है बेटा? ये सॉइल को लूज करने के काम आता है, सॉइल को सॉफ्ट करने के काम आता है दिस प्लाउ. सो द अर्ली मैन नाउ दे, जब वो खेती करते थे तो सॉइल को लूज करने के लिए, नाउ टू मेक द सॉइल सॉफ्ट, they used this plow. This helped the early man to make the soil soft for फार्मिंग. सो ये जो प्लाव बनाया उन्होंने, उससे क्या होता था, जो हल जोतते हैं तो उससे क्या होता है, जो है खेतों में जो मिट्टी होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और वो इजी हो जाता है उनके लिए सीड्स को डालने में, और वो अच्छे ग्रो होते हैं. सो दस द अर्ली मैन जो है अब वो फार्मर्स बन गए थे. नाउ द अर्ली मैन दे बिकेम फार्मर्स. पहले वो हंटर गैदरर्स थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे. देन दे बिकेम नाउ फार्मर्स, और अब वो एक ही जगह पे रहने लग गए थे. अब उनको एक जगह से दूसरी जगह घूमने की जरूरत नहीं थी इन सर्च ऑफ फूड. सो नाउ दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन वन प्लेस एंड दे बिकेम फ्रॉम हंटर्स दे बिकेम नाउ सेटलर्स. अब वो सेटल होने लग गए थे एक ही जगह पे. पहले वो फूड को खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, बट नाउ दे स्टार्टेड लिविंग इन one place. So this is how the early humans became settlers. Now from hunters they became